رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم۔ محمد اسلم، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مظفر گڑھ۔ مظفر گڑھ سے تعلق ہے۔ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں آپ؟ یہ ریتی بجری کا۔ ریت بھی چلاتے ہیں، ٹرک بھی چلاتے ہیں آپ؟ جی سر۔ ماشاءاللہ، ریت بھی لوڈ کرتے ہیں، ٹرک بھی چلاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح گزر رہا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، مدینہ ہو رہا ہے۔ صحیح تھا، جس کا ایمان صحیح تو اس کا سب کچھ صحیح، جس کا ایمان کمزور ہے تو اس کا صبح کس طرح ہوتی ہے آپ کی اور شام تک کس طرح معمولات آپ کے چلتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ صبح اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بعد میں کام پہ آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر شام کو چلے جاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں رمضان میں؟ 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کتنی ٹرک لوڈ کر کے آپ لے کے جاتے ہیں؟ یہ ادھر شہر میں لے کے جاتے ہیں، یہ ادھر کھڑے رہتے ہیں۔ کتنے چکر لگتے ہیں دن بھر میں؟ 2 لگ جاتے ہیں، 3 بھی لگ جاتے ہیں۔ 2 لگ جاتے ہیں، 3 لگ جاتے ہیں۔ جب روڈ پر گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں، ٹریفک ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے، بس کوئی کیسے کر سکے، کیسے کبھی کسی کی آنکھوں میں ریت اڑ کے جا رہی ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ اچھا آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں محنت والا کام نہیں بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود روزے میں غفلت کرتے ہیں، غفلت کر بیٹھتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا دے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، روزہ رکھیں، یہ تو ایک اہم ہے، سب کچھ روزہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے۔ جی دیکھیں یہ اسلام کا اہم ترین کام ہے اور روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے جب یہ محنت والا کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جو شخص ہمت کرتا ہے، نیکی پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کوشش تو کرے۔ جی ہاں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس کے اندر کسی شخص نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ آپ بھی روزہ چھوڑنے کے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ راستے خود کھلتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماما کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نور محمد۔ نور محمد۔ آپ کیا کام کرتے ادھر؟ یہ بجری ملاک چھڑا، یہ چھڑا لوگوں کے گھروں پہ؟ ہاں گھروں میں۔ کتنی منزل کے اوپر تک چڑھا لیتا آپ؟ بس 3 منزل، 4 منزل، 2 منزل، 1 منزل، کتنا منزل زیادہ ہوا؟ کتنا وزن لے کے اوپر جاتے ہیں آپ؟ بس 100 کلو وزن ہے کم از کم؟ ہاں کم تر کم 100 اس سے کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے؟ 80 90 100 سے اوپر ہے، کم نہیں۔ اچھا اچھا یہ بتا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، آپ صبح میں اٹھتا ہے تو پورا دن کیسے گزارتا ہے اپنا؟ کیسا پورے دن میں کام نہیں کرتا، صبح نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 6 بجے ادھر اڈے میں آتا ہے، بس گراک میراک لگے گا 11 12 بجے میں، بس ختم کیا، بس گھر میں چلا گیا۔ کیوں کرتا ہے 11 12 بجے ختم کیوں کرتے ہو؟ بس کام ختم ہوا، چلا گیا، روزہ ہے نا۔ اچھا ہاں یہ روزے سے وجہ زیادہ کام نہیں کرتا ہے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، روزے کی وجہ سے یہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کام پر صبح جلدی چلے جاتے ہیں اور بھی جلدی ختم کر دیتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھوڑتے۔ روزہ نہیں چھوڑتے۔ روزہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ روزہ رکھتا ہے بھائی، ہم نماز نہ تراویح پڑھتا ہے، بس روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے نا۔ ہاں یہ بات کی انہوں نے پیاری کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر روزے فرض کیے گئے، اسی لیے ہم روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنا چاہیے۔ سال کے 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر 1 مہینہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور جب افطار پہ دسترخوان پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نعمتیں آشکار ہوں گی کہ ہم عام دن کے اندر وہ چیزیں نہیں کھا سکتے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دسترخوان عطا فرماتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مزید محنت کشوں کی طرف، دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ شکر اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نسیم۔ محمد نسیم۔ کتنا عمر ہے آپ کا؟ تقریباً 50 سال سے اوپر ہے۔ 50 سال سے اوپر ہے۔ اچھا یہ بتا، آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ ابھی ریتی چلا لے، بلاک چلا لے، تو یہ مزدوری۔ یہ تھیلے میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ تو کچھ ترکیب بول رہے تو بلاک کمر میں خراب نہیں کرے، اچھا اور بوری بھی ہے، اور
तो रस्सी भी है। अच्छा, ये इसलिए रखते हैं कि पीठ पे रख के फिर उस पर सामान लोड करते हैं, कमर में नुकसान ना बजाए। कमर में नुकसान नहीं पड़े तो इसलिए अच्छा। हम लोग रखे। अच्छा अच्छा, दिन भर में कितना काम करते हैं, कितने मतलब ब्लॉक चढ़ा लेते हैं, रेती के ट्रक चढ़ाते हैं? कभी काम है तो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी एक चक्कर मिलता है, कभी 4-5 दिन नहीं मिलता है काम। अच्छा हाँ। अच्छा, रमज़ान का महीना आ गया तो रमज़ान आप कैसे गुजारते हैं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल सही गुजरेगा रोज। हाँ, मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं आप? तो शाम तक हम लोग काम नहीं करते, मकसद तो सुबह निकलेगा 6 बजे तक, तो ऐसे तो कभी 12 बजे तक, कभी 11 बजे तक, कभी 10 बजे तक, तो इसलिए रोज़े रख देता है, इसलिए ज़्यादा काम नहीं करता है। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, ये भी रोज़ों का एहतमाम करते हैं और रोज़ा मतलब मुशक्क़त में हमें ना डाल दें, रोज़े की वजह से आजमाइश ना हो जाए, ज़्यादा कमज़ोरी ना हो जाए, ज़्यादा नकाहत ना हो जाए, इसलिए एहतमाम ये करते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो आधे दिन के अंदर काम करते हैं, मगर सुबह जल्दी निकल जाते हैं। रिस्क की तकसीम का वक्त सुबह का है, सुबह ये निकल जाते हैं और 12 बजे तक अपने घरों को लौट आते हैं। रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, तरावियाँ भी पढ़ते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं। 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल तक ब्लाक के लगे। एक वक्त में कितने ब्लाक लेके जाते हैं ऊपर? 6 ब्लाक। एक ब्लाक का वजन कितना होता है? तो एक ब्लाक का 18 किलो वजन होता है। तो 18 किलो का एक ब्लाक है और ये 6-6 ब्लाक लेके फर्स्ट फ्लोर हो तो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर जाना हो तो सेकंड पे, और थर्ड पे जाना हो तो थर्ड फ्लोर तक जाते हैं, बल्कि इससे भी ऊपर जाना पड़े तो ये जाते हैं। और इतना वज़न लेके जाते हैं रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर। वो लोग गौर करें इस पर कि जो लोग रोज़ों से गफलत बरते हुए हैं, रमज़ान की मोहब्बत, रमज़ान की उल्फत अपने दिल में पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुश्किल काम भी आसान नज़र आ जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। चलते हैं अगले आशिक रसूल की तरफ। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बुलागा। गुल आगा। यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? हम लोग यहाँ ब्लॉक चलाते हैं, गाड़ी लोड करे, गाड़ी खाली। अच्छा, मतलब ये एक ब्लॉक वगैरह भी चढ़ाते हैं और ये ट्रकों के अंदर रेती वगैरह भी लोड करते हैं। दिन भर में कितने ट्रक लोड कर लेते हैं? कभी 2 कभी 1 गाड़ी लोड करते हैं। अच्छा, रमज़ान का महीना आता है तो फिर रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? बस शुक्र है, सही गुजर। सुबह कितने बजे होती है और फिर शाम में क्या करते हैं? शाम को काम नहीं करते, 10 बजे 11 बजे तक। 10-11 बजे तक ख़त्म कर देते काम? क्यों? रोज़े है ना। अच्छा, रोज़ा है ना। एक काश ऐसा हो जाए, हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सख्तियाँ आसाइशों में तब्दील हो जाएंगी, नरमियों में तब्दील हो जाएंगी। आइए चलते हैं अगले आशिक रसूल की तरफ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? बेदार खान। बेदार खान, यानी आप बेदार है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस उम्मत को भी बेदार कर दे। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ये पत्थर का काम कर रहा हूँ। ये मेरे साथ जो ना रोड़ी बनता है पत्थर से, जी जी। तो कुछ लेबर भी काम कर रहा है। ये किस काम आता है? ये प्लाटों में आता है, अक्सर बेसमेंट में फर्श लगाते हैं ना, तो उसमें बुनियाद के लिए पक्का करने के लिए जो ना जी, जी। रोड़ी लगाते हैं। जी जी। तो ये वो रोड़ी का काम है हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ और भी लोग काम करते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे साथ लेबर है, वो जो ना तोड़ते हैं, उनके बदौलत हम ठेकेदार हैं उनके। अगर वो काम करते हैं तो हम ठेकेदार हैं। अच्छा। वो कमाते हैं तो समझो हम भी कमा रहे हैं ना। अच्छा, तो हलाल की रोजी है अल्लाह दे रहे हैं हमें, और हमें माँ बाप ने सिखाया है कि हम हलाल की रोजी कमाएं। माशाल्लाह। तो हर तरीके से हम अपने हलाल रोजी के लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी। अच्छा, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, अब तो धूप भी है और मेहनत भी है, काम भी है। रमज़ान का महीना आप किस अंदाज में लेते हैं, किस तरह गुजारते हैं आप? तो 12 महीने इस तरीके से कि 11 महीने हम लोग ठीक ठाक जो ना कमाते रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक महीना ऐसा है कि इसकी आधे दिन की ड्यूटी हम करते हैं। अच्छा। कि हमारे मजदूरों को भी ज़्यादा नुकसान न रहे। अच्छा। कि उनका रोज़ा अपनी जगह महफूज रहे। अच्छा। क्योंकि गर्मी भी इतनी शिद्दत थी कि मत पूछे इस रमज़ान में। मगर मुसलमान वो है, हर हालात में, हर मुसीबत में, हर गर्मी में, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो, मगर हम रोज़ा रखेंगे। जी जी। क्योंकि ये हमारा बदन जो है ना, इसका हमने अल्लाह ताला को वो देना, इस हमारे ऊपर हक है, यानी रमज़ान का। तो इसका जो ना हम लोग हक अदा करें। अभी तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बादल भी आसमान पे छाए हुए हैं। शुरू के दिनों में गर्मी भी थी तो उस वक्त आजमाइश भी लाजमी हुई होगी। आप अपने मजदूरों को टाइमिंग वगैरह में के हवाले से क्या रिलीफ देते हैं? तो मजदूरों की टाइमिंग रिलीफ ये है ना कि सुबह
जब फजर की नमाज पढ़ के आते हैं वो ठंडे टाइम पे जी जी अपना काम काज कर लेते हैं, तो 9-10 बजे जब बजते हैं तो वो फिर घंटा रिलैक्स करते हैं, फिर 12 बजे तक वो काम कंप्लीट करके अपने वज़ू करके नमाज पढ़ के यहाँ से फिर वो चले जाते हैं। मतलब मुसलसल मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे होते हैं? हाँ, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लेबर कहाँ पर है? मेरी लेबर ये सामने यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये आपकी लेबर है। हाँ, और भी थी 1-2 उन लोगों की छुट्टी हो गई है, ईद हाँ, के गाँव गए। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, इनकी लेबर के पास भी चलते हैं और उनके काम भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रही है, हल्का काम है या हार्ड काम है, आपको ये भी दिखाते हैं और फिर इनके तासुरात भी लेते हैं कि इनके तासुरात क्या है, रमज़ान के हवाले से इनके क्या मदनी फूल हैं जो हम तक पहुँचे और हम इसके ज़रिए क्या हासिल करते हैं। आइए चलते हैं इनकी लेबर की तरफ, देखते हैं कि वो क्या काम कर रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है, आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर अल्लाह का। अच्छा, माशाअल्लाह। ये पसीना हो रहा है आपको, माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान में आप यहाँ माशाअल्लाह काम कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को अपना रोज़ा रखे, सुबह रोज़ा रख के जैसे अजाने होते हैं नमाज पढ़ के आके अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, फिर सर 9-10 बजे तक हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आखिरी 11 बजे तक। अच्छा, फिर छुट्टी करके चला जाते हैं। फिर शाम में 1-2 घंटा काम करते हैं। अच्छा, टाइमिंग सुबह और शाम है सर, दोपहर में काम नहीं करते हैं सर। अच्छा, क्यों नहीं करते? दोपहर में काम क्यों नहीं करते हैं? बहुत गर्मी होता है सर, अच्छा, इस वजह से काम नहीं करते हैं सर। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपको हिम्मत अता फरमाए कि आप रमज़ान के मज़ीद रोज़े भी रखें, खूब इबादतें भी करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, काम आप देखें कितना सख्त काम है, ये मामूली काम नहीं है। ये पत्थर जो हम तक पहुंचते हैं ना, ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ों के ज़रिए तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद ये पत्थर हम तक पहुंचते हैं और हमारे घरों की बुनियादों में ये पत्थर लगते हैं। अच्छा, देखने की बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौसम बिल्कुल ठंडा है, गर्मी नहीं है, हवा चल रही है और वाकई माशाल्लाह मदीना हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन इसके बावजूद पसीने से इनके कपड़े तर हैं, पसीना इनको आया हुआ है, मेहनत कर रही है। और अगर इसी की जगह पर धूप निकला है और हवा भी रुक जाए, इनका काम नहीं रुकता। मेहनत वाले काम ये कर ही रहे, मुसलसल मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ फिर भी ये काम कर रहे हैं। इन्हें अपने वक्त पर अपना काम करके देना है और फिर अपने वक्त पर घर पहुँचना है। तो ये मेहनत वाले इतना काम कर रहे हैं। पत्थर तोड़ना आसान काम नहीं, चट्टानें तोड़ना आसान काम नहीं है, मेहनत वाला काम कर रहे हैं। पसीने से माशाल्लाह बिल्कुल इनके कपड़े जो है वो तर हुए हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा नहीं छोड़ रहे हैं। आप आवाज़ भी सुन सकते होंगे कि जब पत्थर पे ये हथौड़ा पत्थर पे लग रहा है तो आवाज़ कैसी आ रही है, सुने। यकीनन आपने आवाज़ सुनी होगी कि ये इतनी तेज़ी के साथ पत्थर पे हथौड़ा मार रहे हैं और पत्थर को ये तोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने पत्थर इन्होंने तोड़े हैं। दिन भर के अंदर गाड़ियाँ वगैरह भर के फिर ये गाड़ियाँ जो है जहाँ पर जानी होती है वहाँ पर जाती हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना रोज़ा रख कर गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके रोज़ों के सदक़े हमारे रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। जब ये रोज़ा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? ऐ मेरे वो इस्लामी भाई कि जो मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, मुशक्क़त वाले काम नहीं करते हैं, ऑफिस के अंदर सीटों पर बैठते हैं और AC के अंदर पंखों में होते हैं और फिर भी रोज़ा नहीं रखते। खुदारा अपने हाल पर रहम फरमाइए, अपने हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला भी आपके हाल पर रहम फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया के अंदर आला मनसब पर हों और जन्नत में जाने से रोक दिया जाए। और ये दुनिया में अगरचे आला मनसब पर नहीं है, अल्लाह ताला की इबादत करने की बदौलत, रोज़े रखने की बदौलत इन्हें जन्नत का मुजदा दे दिया जाए और फिर हम काफ़ी अफसोस मलते रह जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। जिन्होंने आज तक रोज़े नहीं रखे उनसे हाथ जोड़ के मदनी इल्तिजा कि खुदारा अपने रोज़ों का एहतमाम कीजिए, रमज़ान को एहतमाम कीजिए, रोज़े रखिए इससे पहले कि ये वक्त गुज़र जाए। जी हाँ, ये वक्त गुज़र गया तो फिर हाथ आता नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलते हैं एक और आशिक़ रसूल के पास, देखते हैं वो क्या मदनी फूल देते हैं हमें। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, खैरियत है? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? नूर खान। नूर खान, माशाल्लाह आप भी पठान हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ज़िला दीर, खैबर पख्तूनख्वा। ये बताएं, अभी यहाँ पर क्या काम करते हैं? बस इधर ये आपका मजदूरी करता है, ये पत्थर में करता है। मदनी चैनल के नाज़रीन ने तो आपको देख लिया, आपका माशाल्लाह काम क्या है। आप बताइए क्या काम करते हैं यहाँ पर आप? बस ये पत्थर तोड़ता है। पत्थर तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए कि दिन भर में कितना काम करते हैं? रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, तो आप रमज़ान में किस तरह अपना वक्त गुजारते हैं? बस रमज़ान के महीने में अब जो है ना 11 बजे तक काम करते हैं। आज थोड़ा मौसम सही था ना, हाँ हाँ, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, अब भी आया ना, अच्छा तो इसलिए 11 बजे 11:30 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, फिर जाके नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा से आराम करके अच्छा फिर उठ के फिर नमाज़ पढ़ेगा। अच्छा, हाँ, इसी तरह रमज़ान गुजारेंगे हाँ, आप? इस तरह। अच्छा ये बताएं कि जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं, रमज़ान के मुबारक महीने को ऐसी गफलत से गुजारते हैं, आप उसको क्या पैगाम देंगे? यार हम लोग को अब हर आदमी को ऐसा बोलते हैं कि अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ने का, ये अच्छा काम नहीं है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर तो कीजिए, कितने लोग आज तक हमने जितने सिलसिले किए उन तमाम सिलसिलों के अंदर उमूमन लोगों का यही मैसेज आप लोगों तक पहुंचा है जो रोज़े नहीं रखते, उन तक यही मैसेज दिया कि खुदा ना रोज़े रख लें। मेहनत कश आपको समझा रहे हैं कि रोज़ा रख लें। ज़रा गौर तो करें कि ये मेहनत कश रोज़ा रखने के बाद इसकी लज्जत पाते हैं, तभी तो आपको समझा रहे हैं कि रोज़ा रख लें। देखिए कितनी मुशक्क़त कर रही है, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रख कर पत्थर तोड़ रहे हैं, मगर जब वक्त इफ़्तार आएगा, दस्तरख़्वान पे बैठेंगे, इफ़्तार कर लेंगे, तो वो जो दिन भर की मुशक्क़त है वो मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, मगर एक अज़ीम नेकी नामा आमाल में लिख दी जाएगी। तो हम भी अपने नामा आमाल में मुशक्क़त की वजह से घबराएं नहीं। हर सख्ती के बाद आसानी है, हर सख्ती के बाद आसानी है, हर सख्ती के बाद आसानी है। औलिया कामिलीन का ये कौल भी मिलता है कि जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार होगा, मेहनत तलब होगा, कल बरोज़ क़यामत मीज़ान अमल पे उतना ही भारी होगा। छोटी से छोटी नेकी को भी छोटी समझ के ना छोड़ें और छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा समझ के ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकों के सदक़े में, रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े में बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाए, और रमज़ान के मुबारक महीने का अदब और एहतराम करते हुए इसके मुबारक महीने में रोज़े रखने की, इबादतें करने की और अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत हासिल करने की सादत अता फरमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है मेहनत कशों का रमज़ान, और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रेत ही रेत है, जहाँ पर बजरी ही बजरी है। ट्रक में आशिकान रसूल मेहनत कर रहे हैं और ज़मीन से रेत को बेलचे से उठा उठा कर ट्रकों में लोड कर रहे हैं। जी हाँ, आज चाहे मदरसा तामीर करना हो या मस्जिद तामीर करनी हो या हमें अपने घर का काम करना हो, हमें अपने घर की तामीर करनी हो, इसमें रेत बहुत अहम किरदार अदा करती है। जी हाँ, इसके बगैर शायद हमारे घर बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो। तो हम आपको लेके आए हैं ऐसे आशिकान रसूल के पास कि जो बजरी का काम कर रहे हैं, बजरी के ट्रक लोड कर रहे हैं। इनसे कुछ तासुरात भी लेंगे और देखेंगे कि ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना किस तरह गुजारते हैं। आइए चलते हैं इन आशिकान रसूल की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। अच्छा, सनाउल्लाह नाम है आपका। जी अच्छा, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ये स्टॉक का मुंशी हूँ, ये फ्रेश का और ये रेती का। अच्छा यहाँ पे ये डंपर वगैरह लोड करते हैं, यहाँ का मुंशी हूँ। अच्छा, दिन भर में कितने लोड हो जाते होंगे? दिन भर में यहाँ तकरीबन 130 से 140 तक गाड़ियाँ लोड होती ट्रक लोड हो जाती होंगी? हैं। जी हाँ, ये राकेट गाड़ियाँ लोड होती अच्छा, तो अब ये मजदूरों से काम करवाता भी है? हैं। नहीं, पहले तो मजदूरों से कराते थे, अभी रमज़ान आ गया तो रमज़ान के लिए हमने ये मशीन की बंदोबस्त कर लिया। हमने बोला मजदूरों के लिए थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, तो ये मशीन की बंदोबस्त हमने की, मशीन लगाई। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अच्छा, ये मतलब मशीन से काम करवाता भी है? जी हाँ, मशीन से काम करा। वैसे मजदूर कितने काम करते हैं आपके पास?
मजदूर तो हमारे पास तकरीबन हर गाड़ी के साथ 3-4 मजदूर होते हैं। अच्छा, हाँ, खाली करने वाले और लोड करने वाले। गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास? हमारे पास ये स्टॉक पे जो चलती है 120 गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, अलग अलग सारी गाड़ियाँ, 120 गाड़ियाँ? टोटल इतने ट्रिप होते हैं गाड़ी हमारे पास, ये 50 से 60 गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मजदूर यहाँ से लोड कर, यहाँ से मशीन के जरिए लोड करवाते थे, वहाँ पर मजदूर खुद खाली करते वहाँ हैं? पे मजदूर खुद अच्छा, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, तो रमज़ान का मुबारक महीना आप कैसे गुजारते हैं? बस सुबह सहरी करके जब हम आते हैं यहाँ पे स्टॉक पे, तो यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, गाड़ी लाते हैं, तो असर के टाइम जब यहाँ नमाज़ पढ़ के फिर जाते हैं इफ्तारी के लिए। अच्छा, जी, अच्छा, फिर उसके बाद फिर शाम में, रात में कोई काम नहीं होता? रात में फिर काम नहीं होता, बस दिन में ही काम करते हैं? दिन में कितनी देर तक काम करते हैं? दिन में हम सुबह से काम करते हैं तकरीबन ये असर के टाइम तक करते हैं, इसमें दरम्यान में थोड़ा वक्फा भी करते हैं। अच्छा, हाँ, ये दोपहर नमाज के बाद हम वक्फा करते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे वक्फा करते हैं, फिर उसके बाद फिर काम। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मजदूर रमज़ान का रोज़ा उसने रखा हुआ है और ये इतना मेहनत वाला काम करते करते उसकी तबीयत ख़राब हुई है, बेहोश हो गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं यार, लोग तो ये कहते हैं कि रोज़ा रखते तो हम बीमार हो जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम ये सुबह आ जाते हैं, सहरी करके आ जाते हैं, ये धूप में ये काम करते हैं, हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो मौसम वैसे माशाल्लाह अच्छा है, मौसम तो वैसे रमज़ान के शुरू के रोज़ों के अंदर बहुत गर्मी रही है। शुरू के अंदर गर्मी रही, लेकिन हम फिर भी अपना काम इसी तरह करते रहे जैसे आज हम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा कोई भी मजदूर सब बेलचा के काम करते हैं और हम यही धूप में सब काम करते हैं। हमारे किसी मजदूर को अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मदनी चैनल के जरिए उन लोगों को कि जो लोग ये कहते हैं कि यार हम रोज़ा रखते हैं तो बीमार हो जाते हैं इसलिए रोज़ा नहीं रखते हैं, हालांकि उनका इतना मेहनत वाला काम नहीं होता है फिर भी वो रोज़ा छोड़ देते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगा सर कि वो सब वहमी मरीज़ है, क्योंकि रोज़े से कोई ना अभी तक मरा है और ना मरता है। अच्छा, रोज़ा रखना ये अल्लाह का हुक्म है, ये सबको रखना चाहिए। रोज़े से ना बंदा बीमार होता है बल्कि और सेहत और जान उसको मिल जाती है। माशाअल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अगरचे इन्होंने हदीस पाक का हवाला नहीं दिया, ना ही इन्होंने मतलब ये कहा, लेकिन इनका अपना ये कहना है कि रोज़े से बंदे को और सेहत मिल जाती है। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान भी यही है कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो ये जब रमज़ान के मुबारक महीने में इतना मेहनत वाला काम करते हैं, इतनी डिटेल के साथ इन्होंने बताया है कि हाँ, रोज़ा रखने से हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता। रमज़ान के मुबारक महीने में इनके यहाँ पर 50 से ज़ायद ट्रक हैं और हर ट्रक पे 2-3 मज़दूर काम करते हैं। यहाँ से अगरचे मशीनों पर लोड हो जाती है, मगर जिस जगह पर जाना होता है वहाँ मज़दूर खुद उतार रहे होते हैं इनको, और जब मज़दूर उतारते हैं फिर वहाँ से दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। धूप में सफ़र होता है, मेहनत वाला काम भी है, इसके बावजूद इनका ये कहना है कि हमारा कोई भी मज़दूर रोज़ा रखने की वजह से बीमार नहीं हुआ, रोज़ा रखने की वजह से उसे कोई टेंशन नहीं हुई, तकलीफ़ नहीं हुई। अगरचे तकलीफ़ हो भी जाए तो रोज़ा रखने से हुई है ना। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह तबारक व तआला की राह में उन्होंने अपने सर को कटाया। 3 दिन उन्होंने भूख को प्यास बर्दाश्त की। किसके लिए बर्दाश्त की? मेरे मोहतरम इस्लाम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत तक इस्लाम पहुँच जाए, नेकी की दावत के इस राह में इन्होंने 3 दिन तकालीफ बर्दाश्त की, 3 दिन भूख को प्यास बर्दाश्त किया। न सिर्फ 3 दिन भूख को प्यास बर्दाश्त किया, बल्कि अपने जिगर के टुकड़ों को कटता हुआ देखा करबला की तपती हुई रेत पर, फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से मतलब कोई शिकवा नहीं किया, कोई अल्लाह ताला की बारगाह में कोई रंजिश, कोई अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे आपका शिकवा टपकता हो, बल्कि आप हर वक्त सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले ही रहे। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम भी रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला की हराम करदा चीज़ों को हराम समझते हुए उनसे बचें, जिस चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उसे हलाल समझते हुए उससे मुस्तफ़ीज़ हों, उससे फ़ैज़ हासिल करें। यकीनन रमज़ान का मुबारक महीना हमें यही दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है। इस मुबारक महीने में हमें भूख लगे तो सब्र करना है, प्यास लगे तो सब्र करना है। अगर मुसलमान भाई से हमें कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो हमें सब्र करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करेंगे तो उसका अजर मिलेगा, और सिलाए रोज़ा रमज़ा रखने का पाएगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मेहनत कशों के रमज़ान में आपने देखा रेती के बड़े बड़े टीले और मेहनत कशों को देखा कि जो बेलचों के ज़रिए रेत ट्रकों में लोड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने वो आशिक रसूल भी देखे कि जो बड़े बड़े पत्थरों को
توڑ رہے ہیں ہتھوڑوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں سے، مشین کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے ہیں یہ لوگ، کتنے پیارے یہ عاشق رسول ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اتنی محنت والے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مبارک مہینے کے اندر یہ محنت والے کام کرنا آسان نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بالخصوص اہتمام کرتے ہیں، صبح کام پر جلدی آ جاتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے محترم اور مکرم اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلامی بھائی غور کریں کہ جب یہ عاشقان رسول اتنی محنت والے کام کرنے کے بعد کام کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی اتنا محنت والا کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سوچئے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزوں کو غفلت میں گزارے بیٹھے ہیں، اپنے روزوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والے جب اس کا اجر پائیں گے تو وہ حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جنہوں نے اس رمضان کو غفلت سے گزارا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں کفِ افسوس ملتے رہنا پڑ جائے، غفلت کی وجہ سے جو رمضان گزارا اس پر افسوس ہو جائے، ندامت ہو جائے، شرمساری ہو، دنیا میں مشقت برداشت کر لیجئے، دنیا میں بھوک برداشت کر لیجئے، دنیا میں پیاس برداشت کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں پیاسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیاسے رہیں گے، تو انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے میدان محشر میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پینا نصیب ہوں گے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھوکے رہ لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، تو انشاءاللہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمیں کھانے کے لیے ملیں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے آگے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس برداشت کریں، میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے محفوظ ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں آپ کو پھر لے کے جائیں گے کچھ ایسے عاشق رسول کے پاس جو محنت کر رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں مشقت والے کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے سلسلے میں دکھائیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔